किस तरीके से डिस्कस किया जा रहा है, कौन से मुद्दे हैं जो आज डिस्कस किए जा रहे हैं? APMC ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਸਾਡਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟ ਆ, ਉਹ ਐਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 8.5% ਟੈਕਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ 25,000 ਆੜ੍ਹਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਨੀਮ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਫਸਲ ਖਰੀਦੂਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਸਲ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਰੁਕ ਜੂ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੂਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਆ, RDF ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੁਕ ਜੂਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖੇਡ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਸਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ APMC ਐਕਟ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਦਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਹਿਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਦੂਜੇ ਚਰਨ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਥਾ ਆਊਗਾ, 26 ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ MP ਆਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। लेकिन सरकार लगातार कह रही है कि MSP है, MSP रहेगी, क्या कहते हैं? कहाँ है MSP? 2 फसलों पर MSP है। सरकार ने 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਮੂੰਗੀ ਰੁਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੋਇਆਬੀਨ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੱਧੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅੱਧੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਮਿਲ ਲੈਣ। ਉੱਥੋਂ 1000-1200 ਰੁਪਈਆ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ, ਤੇ MSP ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ MSP ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਮੀਡੀਆਮੈਨ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲੇ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀ ਤੇਲ ਦੀ, ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਆਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਕਣਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਉਦੋਂ 150 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੀਜਾ, ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦਸ਼ ਕਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਤੇਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਆ, ਫਰੂਟ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ MRP ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਉਵੇਂ MSP ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਊਨਤਮ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜੂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚਾਂਗੇ। हिंदी में बोले पंजाबी में? चलो, सबसे पहले तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो आज दूसरे दिन की हमारी संसद है, तो उसकी प्रोसीडिंग कार्रवाई चलाने के लिए 6 मेंबरों का प्रेसिडियम बना है। सो सबसे पहले जो स्पीकर की भूमिका थी, जो स्पीकर की जिम्मेवारी थी, वो हरदेव सिंह अर्शी पंजाब के, जगतार सिंह जी बाजवा जो उत्तराखंड से हैं, और इसके बाद हमारे 4 और प्रेसिडियम के मेंबर हैं, B वेंकटरमैया तेलंगाना से, मुकेश चंद्र जी और जंगवीर सिंह जी चौहान पंजाब से, और हरपाल बलारी जी जो पहले अभी उन्होंने बैठ दिया। ये प्रेसिडियम हमारा इलेक्ट हुआ है। हमारा पहला सेशन जो टी से पहले था वो अब अडजन हो गया है और चाय के बाद दोबारा चलेगा। आज हमने पूरी तरह से जो संसद जो कार्रवाई होती है उसी तरह की प्रोसीडिंग हमने चलाई है। सबसे पहले जो प्रश्न आवर था, क्वेश्चन आवर, 1 घंटा हमने लोगों के क्वेश्चन लिए, और जो सो कॉल्ड मिनिस्टर था वहाँ सरकार की तरफ से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वो उनके उत्तर देने में पूरी तरह फेल रहा और बार बार हाउस को गुमराह करता रहा, मिसगाइड करता रहा, और उसको वार्निंग भी चेयर की तरफ से देनी पड़ी कि अगर इसी तरह आप हाउस को मिसगाइड करोगे तो आपके ऊपर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का केस भी बन सकता है। तो मेंबरों ने इतना गुस्सा था उनके उत्तर में, क्योंकि उनका उत्तर बिल्कुल इधर उधर की बात को घुमाने का था, कंक्रीट क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा था।
ਮੈਂਬਰੋं ने बार बार जो है उनको शेम करके जरा डिस्टर्ब भी किया। और फिर भी मैं क्या अब शब्द बरतूं कि ये मिनिस्टर इतना गैर जिम्मेवार हो सकता है कि जो प्रॉपर स्पेसिफिक जो क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे सका, वो फेल हो गया क्योंकि उसका हिडन एजेंडा और है, बाहर का दिखाने का एजेंडा और है। बाहर तो बहुत सी बातें करते हैं कि ये एमएसपी है रहेगी, तो जो फिर भाई क्या दिक्कत है उसका लीगली मतलब स्टैच्यूटरी पावर उसको क्यों नहीं बनाते, क्या दिक्कत है। तो ये सारा सेशन आज चला बड़ा शानदार, बिल्कुल जो एक संसद होती है उस तरह कार्रवाई संसद की चली। अभी हमारे साथी जगतार सिंह जी बाजवा कुछ थोड़ा सा और ब्रीफ करेंगे। आइए बाजवा जी। क्वेश्चन सो मैनी क्वेश्चन। उन्होंने कहा था कि ऑलरेडी जी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्राइसिस में है, आप उनके ऊपर एक और बम फोड़ रहे हैं, ये हमें पूरी तरह बर्बाद कर देगा, आपको क्या आवश्यकता है इसकी। ये था शुगर केन का पिछले कितनी सालों से पेमेंट नहीं मिला, बकाया है, इसके बारे में प्रश्न था। आप बोलते थे अपनी इनकम 1.5 गुना करेंगे, अब तक कितनी बढ़ाई है आपने, ये था। आपने रोजगार किसानों के बच्चों को कितना दिया, तो इस तरह के बहुत से प्रश्न थे, एक भी उत्तर का वो जवाब नहीं दे सकते। राकेश टिकैत जी कहते हैं कि सरकार ने किसान जो है जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किसान माना है, लेकिन कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से मीनाक्षी लेखी कह रही है कि जो लोग वहाँ पे हैं वो किसान नहीं है, उनको आप किसान ना कहें। देखो ये उत्तर का इस बात का कल बहुत बार उत्तर दे दिया, आज भी कोई कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो समझता जितनी उसी बुद्धि का उन्होंने इस्तेमाल कर दिया, जवाब दे दिया। अब मैं लेडीज नहीं लेडीज की और आके वो आप वेरिफिकेशन करो, हमारी ज़मीन देख लो, हम अब भी झोना लगाकर जहाँ पे आए हैं, हमारे घर में बड़ी दिक्कतें हैं, कोई डेथ हो जाती है हम ताम नहीं जा सकते। ये किसान नहीं है तो आप बता दो फिर किसान क्या किसान संघ वाले किसान हैं? वो किसान है क्या? ये 40 संगठनों के लोग जो हैं वे तो किसान नहीं है, ये तेलंगाना से इतनी दूर से हैं, ये तो किसान नहीं है, तो सिर्फ किसान संघ को ही मानते हैं। किसान है क्या? मंत्री किसान और उस औरत की तो हम कल भी कंडेम किया, लेडीज है उसके बारे में कुछ नहीं, बस जितनी उसकी बुद्धि सी उसका इस्तेमाल कर दिया। फिर मवालियों को कृषि मंत्री क्यों मंत्रित करता है, हम बात के लिए तैयार है। कोई मवालियों से बात करता है? नहीं करता। चलो बाजवा साहब करेंगे। कोई बात नहीं। रोल सर रोल। आज की जो संसद किसान संसद चल रही है उसका जो पहला सेशन है उसके बारे में भी आपको बताया है हर्षी जी ने। और अभी एक सवाल आ रहा था कि जो कृषि मंत्री हैं वो जवाब नहीं दे पाए और सदन में उनको शेम करके डिस्टर्ब भी किया गया। तो मैं बता देना चाहता हूँ जो सवाल था वो स्पष्ट ये था कि जब प्रधानमंत्री जी सदन में कहते हैं एमएसपी थी है और रहेगी, तो फिर उसको कानून बनाने में आखिर परेशानी क्या है, जिसका जवाब कृषि मंत्री जी नहीं दे पा रहे। दूसरी बात, तीनों काले कानून जो हैं जो अगर वो किसानों के लिए ही बनाए हैं और किसान चाहते हैं कि उनको एक बार रद्द करके दोबारा से सारे किसानों की सहमति से वो कानून बने, तो उनको रद्द करने में क्या परेशानी है, इसका जवाब ना तो माननीय मंत्री जी दे पाए, ना सरकार का कोई नुमाइंदा दे पाया और ना दे पा रहे हैं। तो ये आज का विषय था, इसलिए ये माना गया है कि मौजूदा सरकार के नुमाइंदे, मौजूदा सरकार के कृषि मंत्री पूरी तरीके से किसान विरोधी भूमिका में हैं और एक कॉरपोरेट के गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। और स्वर्ण सिंह विर्क, हरियाणा किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा से एफिलिएटेड। सर लगातार जो है एमएसपी की बात कर रही है सरकार, केंद्र सरकार दलील दे रही है कि अन्नदाताओं के साथ है, एमएसपी का दर बढ़ाई है और पहले से ज़्यादा ही खरीद भी की है, इस पर क्या कहेंगे आप? केंद्र सरकार ने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। हम किसान 23 वस्तुओं की 23 जिनसों की एमएसपी मांग रहा है और केंद्र सरकार मात्र अभी तक 6 फसलों की एमएसपी देती है, और वो भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा राजस्थान का उत्तरी भाग। यही गेहूं, यही धान मध्य प्रदेश में किस भाव बिकता है, बिहार में किस भाव बिकता है और उत्तर प्रदेश में किस भाव बिकता है। एमएसपी से बहुत नीचे बिक रहा है। हम संयुक्त किसान मोर्चा के लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं गत वर्ष से, हम ये चाहते हैं कि तमाम देश में सभी फसलों के लिए, फलों के लिए भी, दूध के लिए भी और जो बाकी है उन सभी उत्पादों के लिए एमएसपी हो
उनकी खरीद की गारंटी हो कि वो एमएसपी से कम खरीद में, और वो गारंटी तभी कार्यान्वित की जाएगी यदि मंडीकरण होगा। और ये सरकार तो मंडीकरण तोड़ रही है, लेकिन सर जिस पर आज हमारी संसद में चर्चा हो रही है कि ये बड़े खतरनाक ढंग से मंडीकरण को तोड़कर बड़े मगरमच्छों, बड़े व्यापारियों के हाथों, उसी का नतीजा है आज खाद्य तेल कहाँ पहुँच गए, सरसों का तेल कहाँ पहुँच गया। इसी वजह से किसान सभी फसलों के लिए सभी देश में एमएसपी की मांग करता है। लेकिन सर मानते हैं आप कि एमएसपी की वृद्धि हुई है पिछले दिनों में, पिछली फसलों में? और भाई बढ़ोतरी तो ऊंट के मुंह में जीरा। डीजल तो दिन में रात सोते हैं तो कुछ और कीमत, सुबह उठते हैं तो कुछ और कीमत, पेट्रोल की और कीमत, रसोई गैस की और कीमत। खाद का जो बैग है वो 1200 वाला 1800 पर पहुंच गया, और ये थोड़े से 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, ये कोई बढ़ोतरी नहीं है। ये खाली उनका कोरा प्रोपेगेंडा है। एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, वो ग्लोबल प्रोपेगेंडा है। नरेंद्र मोदी झूठों के शहंशाह हैं। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को कह रखा है कि झूठ बोलिए, झूठ बोलिए और जनता को गुमराह करिए। लेकिन सरकार का मानना है कि मंडियों में व्यापार जारी है, मंडी व्यवस्था जारी है, तो उससे और जब कारपोरेट सेक्टर को एक वो क्या बोलते हैं उसे, पैन कार्ड होल्डर को भी ये आदेश दे दिया गया कि वह जहाँ चाहे जिन्स खरीद सकता है, तो वो एक ही आदमी पहले जो 200 क्विंटल या 1000 क्विंटल या 2000 क्विंटल खाद्य सामग्री पर, बाद में उस पर रोक थी, अब वो कोई रोक नहीं। एक ही आदमी तमाम देश का अनाज खरीदेगा, सारे देश को भूखा मारेगा। अच्छा, सरकार लगातार कई योजनाएं चला रही है किसानों को देखते हुए, क्या आपको जो सम्मान निधि का पैसा था वो मिला कि नहीं मिला? अरे भाई फिर वही बात, 2000 रुपया मात्र 3 महीने के बाद, वो भी 4 महीने के बाद, साल में 3 किस्तें, 6000 रुपया। 6000 रुपया अब एक घर का बिजली का बिल नहीं उससे भरा जा सकता, बहुत थोड़ा है। और ये खाली उसने मतलब ये प्रोपेगेंडा के लिए है कि हम किसान को ये दे रहे हैं, इससे किसान का होने हवाने वाला कुछ नहीं आपके है। अकाउंट में आएगा? आपके अकाउंट में आएगा? मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, मेरे अकाउंट में आया है, मैं क्यों मुनकर हूँ, ना झूठ बोलना मेरी आदत है, मेरे अकाउंट में आया है। पर इससे होता क्या है, 1 महीने का बिजली का बिल मुश्किल से कोई एक किसान भर पाएगा। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे YouTube चैनल नू सबसक्राइब करो। नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बेल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसीं ये वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।